अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर? In the previous lectures, we have started the second chapter from the book of Development Economics by Todaro and Smith. We have studied that the comparative statistics of the developing countries and developed countries. Furthermore, we have also studied some features of developing countries, and after that we have defined the developing world. You can say that we have studied the criteria of GNI per capita as set by World Bank, लाइक लो इनकम कंट्रीज कौन से हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज में अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन से हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन से हैं, हाई इनकम कंट्रीज कौन से हैं। इसके अलावा हमने न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के बारे में स्टडी किया। Furthermore, we have also studied the major indicators of economic development. Today, we are going to start the next topic, that is measurement of economic development. Measurement of economic development, economic development can also be measured by the Human Development Index. Basically, Human Development Index is established to measure the level of living and capabilities. और ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए भी जो है वो लेवल्स ऑफ लिविंग एंड कैपेबिलिटी को यूज़ करते हैं। So, you can say that Human Development Index is one of the measurement of economic development. जाहिर है हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जितनी भी अभी तक डेफिनेशन पढ़ी हैं उनको थोरेटिकली हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये जब उसके मेजरमेंट की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली ये एक एम्पिरिकल मेजर होगी, मैथमेटिकल मेजर होगी। सो यू कैन जज द लेवल ऑफ कंट्रीज बाय दिस मेजरमेंट। So, traditional Human Development Index measures the levels of living and capabilities. It was presented by the United Nations Development Programme in its annual series of Human Development Report in 1990. प्रोफेसर महबूबुल हक जो है वो इसके फाउंडर थे और उन्होंने 1990 में जो है वो यूएनडीपी में जो है वो रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसमें जो है इसको एक्सप्लेन किया। एन इंडेक्स मेजरिंग नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट based on combining measures of education, health and adjusted real income per capita। तीन वेरिएबल्स को कंबाइन किया गया, उनकी बेस पर ये इंडेक्स डेवलप किया गया, एजुकेशन, हेल्थ एंड adjusted real income per capita। The traditional Human Development Index attempts to rank all countries on a scale of 0 to 1. 0 means lowest human development and 1 means highest human development, based on the three goals or end products of development। तीन जो है वो वेरिएबल्स की बेस पर जो है वो इंडेक्स जनरेट किया गया है और इंडेक्स की जो रेंज है वो 0 से 1 रखी गई। 0 mean lowest human development index and 1 mean highest human development index। These three variables are longevity, knowledge and standard of living। Longevity, we mean the health, how long, how you got long life after birth, or you can say that life expectancy at birth, average life expectancy at birth। So longevity is measured by the life expectancy at birth। ये बेसिकली हेल्थ का वेरिएबल है, हेल्थ का वेरिएबल, और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर किया गया है बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ।
कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की थी, पैदा होने के बाद जो है वो लोग एवरेज कितना जो है एज जिंदा रहते हैं। जैसे पाकिस्तान की हमने डिस्कस किया था कि 65 है, और हमने बाकी अगर आप पीछे कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स को याद करें उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि यूएसए की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, नॉर्वे डेनमार्क की कितनी है। सेकंड वेरिएबल used in the human development index is knowledge. Knowledge obviously means that it is related to education, and it is measured by weighted average of adult literacy rate and gross school enrollment ratio. इसमें जो है नॉलेज को मेजर करने के लिए जो है वो वेटेड एवरेज ली गई और दो वेरिएबल्स को शामिल किया गया। एजुकेशन के लिए दो वेरिएबल्स को शामिल किया गया। जैसे मैंने बताया था, तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होना था, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होना था, थ्रू आउट द वर्ल्ड की मेजरमेंट में यूज होना था। अब हर कंट्री में जो है ना लिटरेसी रेट से आगे बढ़ चुके हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज तो स्टिल के लिटरेसी रेट से ही एजुकेशन को मेजर कर रहे हैं। अब लिटरेसी रेट में कुछ ड्रॉबैक्स है ना, जैसे मैंने बोला था कि लिटरेसी रेट की डेफिनेशन यह है मोर देन 15 ईयर ऑफ ओल्ड हु इज एबल टू राइट हिज नेम एंड रीड आउट द न्यूज़पेपर। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कुछ ओल्ड एज पीपल हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो वो तो इंक्रीज नहीं हो सकता ना। लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में बड़े मुश्किल टाइम आएगा। मतलब पाकिस्तान में 42% ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं। अब उनमें मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन की वो ओल्ड एज है, तो उनका उनमें इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगी ना। सो सो हम एजुकेशन को मेजर करने के लिए फिर ग्रोस स्कूल एनरोलमेंट रेशो भी ले लेते हैं साथ कि बेसिकली इसमें मैं स्कूलों में कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं उनका ग्रोथ रेट ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो 100% होना चाहिए ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो स्कूलों में एनरोल हो रहे हों। खैर होना चाहिए की बात है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल के जरिए जो है वो नॉलेज को एजुकेशन को मेजर किया गया है। अडल्ट लिटरेसी रेट को 2/3 वेट दिया गया है एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 1/3 वेट दिया गया है। इस तरीके से वेटेड एवरेज निकाली गई है और उसको एज ए नॉलेज और एजुकेशन वेरिएबल शामिल किया गया है इन द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। The third variable used in the measurement of human development index is standard of living as measured by real per capita GDP, adjusted for differing purchasing power parity for each country's currency to reflect cost of living and for the assumption of diminishing marginal utility of income. Diminishing marginal utility of income. Standard of living obviously measured by the real per capita income and adjusted for differing purchasing power parity for each country's currency to reflect the cost of living. बेसिकली ये रियल पर कैपिटा इनकम है डेट इज मेजर्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी को मैं लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर चुका हूँ। ये बेसिकली हम तमाम कंट्रीज को हम सेम प्राइस, तमाम कंट्रीज की इनकम को, नॉमिनल इनकम को हम सेम वर्ल्ड प्राइस लेवल पे सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडजस्टेड का मतलब यही है, जो एडजस्टेड वर्ड यूज किया गया था, एडजस्टेड पर कैपिटा इनकम। हम तमाम वर्ल्ड की जीडीपी को, इनकम को, हर कंट्री की अलग अलग इनकम को सेम प्राइस लेवल का मतलब है वर्ल्ड प्राइस लेवल के लिए एडजस्ट करते हैं। तो उसको हम बोलेंगे रियल पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी मेजरिंग ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। और जो वो वर्ल्ड प्राइस लेवल है वो यूएसए का प्राइस लेवल यूज होगा। किसका? यूएसए का वो वर्ल्ड प्राइस लेवल यूज होगा, यूएसए का सीपीआई यूज होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। So for the measurement of standard of living, the study has used per capita GDP measuring on purchasing power parity. So these three variables has had employed to measure the traditional human development index. Using these three measures of development and applying a formula of data for 177 countries, the HDI ranks countries into 4 groups: low human development,
जिनका HDI जो है वो 0 से लेकर जो है वो 0.499 तक आया है, वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसीडर होंगे। और जिन कंट्रीज का HDI जो है वो 0.50 से लेकर 0.799 तक आया है, वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसीडर होंगे। और जिनका CPI जो है सॉरी HDI जो है वो 0.80 से 0.90 तक आया है, वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसीडर होंगे। और जिनका जो है वो 0.90 से 1 तक आया है, वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूज़ होंगे। आप गूगल पे इजीली सर्च आउट कर सकते हैं कि HDI रैंकिंग, तो उसमें तमाम कंट्रीज़ की रैंकिंग आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं या अदर कंट्रीज़ कहाँ पे फॉल करते हैं। There are certain criticism and possible drawbacks of HDI. कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनकी बेस पर ट्रेडिशनल HDI को क्रिटिसाइज किया गया है। ऑब्वियसली हर रिसर्च में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, इट हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। Relatively complicated formula was used to convert purchasing power parity income into adjusted income, meaning income adjusted for diminishing marginal utility. परचेजिंग पावर पैरिटी की इनकम को फर्दर एडजस्ट किया गया था फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आप समझते होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में। सो दैट वेल बीइंग इंक्रीजेज विद इनकम बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ती जाएगी तो यूटिलिटी जो है उसकी डिक्रीज होती जाएगी, यही इसका मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला यूज किया गया, ये एक क्रिटिसिज्म है। अनदर वन इज दैट ग्रोस एनरोलमेंट इन मैनी केसेस overstates the amount of schooling, because in many countries a student who begins primary school is counted as enrolled without considering whether the student drops out at some stage. प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशो को तो शामिल किया गया है, लेकिन वो स्टूडेंट जो है प्राइमरी में एनरोल हुआ है, वो प्राइमरी कंप्लीट भी करता है या नहीं, ये कंसिडर नहीं किया गया। वो चाहे 1 महीना 2 महीना जाकर छोड़ दे तो उसको तो वो एनरोल्ड ही कंसिडर होगा। तो ये एक ड्रॉबैक कंसिडर किया गया। अनदर वन इज equal 1/3 weight is given to each of three components, which clearly has some value judgment behind it, but it is difficult to determine what this is. Note that because the variables are measured in very different types of units, it is difficult even to say precisely what equal means weight means. तीनों मतलब लॉन्गिविटी को, नॉलेज को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, तीनों कंपोनेंट्स को जो है वो सेम वेट दिया गया है। उस सेम वेट पे क्रिटिसाइज किया गया है कि वेरिएबल जो है वो उनके टाइप्स डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट है, तो उनको सेम वेट क्यों दिया गया। एंड लास्ट वन इज देयर इज नो अटेंशन टू द रोल ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी है मतलब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप जो मतलब इनकम पे बात रखी है, तो इनकम के लिहाज से परचेजिंग पावर पे भी आप बात कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी में आता है ना कि CPI इतना गया हो कि इनकम आपकी होने के बावजूद आप कुछ परचेज ना कर पा रहे हो, ठीक है। तो देर इज नो अटेंशन टू द रोल ऑफ क्वालिटी। So these are the some points on that basis the human development index can be criticized. Next is new human development index. Obviously इसमें further improvements आई on the basis of criticism. In November 2010, the UNDP introduced its new human development index intended to address some of the criticism of the HDI. The index is still based on standard of living, education, and health, but it has 8 notable changes, each with the strength but also a few potential drawbacks. न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है वो इन्हीं 3 वेरिएबल्स पे बेस कर रहा है।
लेकिन उसमें 8 चेंजेस जो हैं वो लाई गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स फिर भी हो सकते हैं। जिसमें मैंने कहा कोई रिसर्च है उसमें ड्रॉबैक्स तो होते हैं ना। फर्दर जैसे डिफरेंट रीडर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट रिसर्चर पढ़ते हैं, उसमें ड्रॉबैक्स निकलते हैं। फर्स्ट नोटेबल चेंज इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा रिप्लेसेस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। पहले जीडीपी पर कैपिटा यूज किया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया जीएनआई पर कैपिटा से। ऑब्वियसली वो भी इनकम है बाय द रिसोर्सेज। द एजुकेशन इंडेक्स हैज बीन completely overhauled. Two new components have been added: the average actual educational attainment for the whole population and the expected attainment of today's children. Actual attainment minus average years of schooling. अब इसमें क्या किया, कैसे एजुकेशन के इंडेक्स को चेंज किया गया है? यहाँ पे अब एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लिया गया है कि आपकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो उसकी एक्चुअल एजुकेशनल अटेनमेंट कितनी है, और एक्सपेक्टेड अटेनमेंट ऑफ टूडेज चिल्ड्रन कितनी है। उसका फार्मूला लिखा है एक्चुअल अटेनमेंट माइनस एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये एजुकेशन के इंडेक्स को जो है वो कम्प्लीटली चेंज किया गया। थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड एजुकेशनल अटेनमेंट। द अदर न्यू कंपोनेंट इज समवट more ambiguous. It is not achievement but a UN forecast. एक्सपेक्टेड एजुकेशन अटेनमेंट का कंपोनेंट यूज़ किया गया, वेरिएबल यूज़ किया गया है, और ऑब्वियसली ये एक एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये मतलब कोई आप कह लें मेजरमेंट नहीं थी, बल्कि ये यूनाइटेड नेशन की फोरकास्ट थी कि हम जो है वो इतनी एजुकेशन जो है वो 2020 तक या 30 तक जो है वो अटेन कर लेंगे। फोर्थ वन इज the two previous component of the education index, literacy and enrollment, have been correspondingly dropped. In contrast to expected attainment, literacy is clearly an achievement, and even enrollment is at least a modest achievement. However, literacy has always been badly and too infrequently measured, and is certainly defined more modestly in the less developed countries. And enrollment is no guarantee that a grade will be completed, or for that matter that anything is learned or that students even attend. यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि वाई वी हैव ड्रॉप द प्रीवियस और ट्रेडिशनल टू वेरिएबल्स, literacy rate and enrollment, gross enrollment, for the measurement of education, for the measurement of knowledge. ये एक्सप्लेन किया कि हमने उन वेरिएबल्स को क्यों रिप्लेस किया। फर्स्ट तो यही लिटरेसी रेट को मैंने जैसे डिफाइन आपके सामने किया था कि ये लिटरेसी रेट की डेफिनेशन है, हु इज़ एबल टू राइट हिज नेम एंड रीड आउट द न्यूज़पेपर। पाकिस्तान में ये है, अदर कंट्रीज में मे बी स्लाइटली डिफरेंट हो। तो दैट इज़ अ वेरी पुअर डेफिनेशन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक वजह थी उसके लिटरेसी रेट के ड्रॉप करने की। और दूसरा, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशियो को क्रिटिसाइज इस बेस पे किया गया है कि उसमें एनरोलमेंट का तो पता लग जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट कितनी है, अब वेदर द स्टूडेंट अटेंड द क्लासेज और नॉट, अब वो कितनी देर तक प्राइमरी पूरी करता है या नहीं करता है, 1 साल पढ़ता है, 1 माह पढ़ता है, 2 माह पढ़ता है, तो ये जो है उससे जज नहीं होता एनरोलमेंट रेशियो से। तो इसलिए इसको जो है वो रिप्लेस किया गया है एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। Another notable change is the upper goal post. Maximum values in each dimension has been increased, and the lower goal post for income has been reduced. मिनिमम अपर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो जो गोल टारगेट किए गए उनकी वैल्यूज को इंक्रीज किया गया है, ताकि डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी इसमें शामिल किया जा सके।
Seventh one is another minor difference is that rather than using a common logarithm to reflect diminishing marginal benefits of income, the new HDI now uses the natural log ln. कॉमन लोगरिथम की जगह जो है वो नेचुरल लॉग को यूज़ किया गया है. यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन लोगरिथम एंड नेचुरल लोगरिथम. चेक कर लीजिएगा आप खुद. And eighth one is possibly the most consequential change is that the new human development index is computed with the geometric mean. कंप्यूट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज किया गया. न्यू HDI इज कैलकुलेटेड विद द ज्योमेट्रिक मीन. ये फार्मूला है इसका हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और ये इनकम के लिए. 1/3 वेटेज है. ये न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक कुछ 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक है. आप इसको अपडेट कर सकते हैं 2020 के मुताबिक. इजीली मिल जाएगा. आप गूगल पे लिखेंगे कंट्रीज रैंकिंग विद न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो इजीली मिल जाएगा. नॉर्वे और एक दो आगे पीछे होंगे, यही होगा तकरीबन. नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स 8वें नंबर पर, यूनाइटेड स्टेट, जापान 20, इंडिया 130 पे, पाकिस्तान 147 नंबर पे है. तो ये कंडीशन है. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. ये आप लोगों ने बेटा बुक से भी कंसल्ट करना है बाय माइकल टुडेरो. आप इंटरनेट से भी साथ कंसल्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली MCQs पेपर बनना है आप लोगों का तो वो बुक से बनेगा. बुक्स को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा. थ्रू आउट बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा उसके ताकि आप लोग MCQs को कवर कर सकें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. ये जो हमने पहले पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. इन दोनों को आप मर्ज करके लिख सकते हैं. एक ही चीज़ है. जो हमने पहले फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ा था और ये अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ये दोनों सेम है. इनको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं. जो पॉइंट सेम हो उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं. लोअर लेवल, फर्स्ट वन इज लोअर लेवल्स ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी. ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था. Lower levels of living that is measured by low per capita income obviously, and productivity is low due to backward and outdated technology. अब जितनी भी डेवलपिंग वर्ल्ड है मोस्टली ये एग्रो बेस्ड सोसाइटीज हैं एंड दे हैव अ लो पर कैपिटा इनकम. और लो पर कैपिटा इनकम होने की वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लो है और लो यील्ड, लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी because they are using backward and outdated technology, so their productivity is very low in the developing countries. तो इसके लिए आप फैक्ट एंड फिगर भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे. सेकंड वन इज लोअर लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, एक फिजिकल कैपिटल होता है, मशीनें वगैरह. ह्यूमन कैपिटल बेसिकली आप लोगों का ब्रेन है, आप लोगों की एजुकेशन है, आप लोगों की रिसर्च है, आप लोगों की डेवलपमेंट है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत कम है. जो इन्वेंशन हो रही हैं कोई डेवलपिंग कंट्रीज में तो इन्वेंशन का नाम ही नहीं है. कोई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाम ही नहीं है. दूसरे कंट्री से ही आ रही है मोस्टली. हमारी अपनी तो कोई प्रोडक्शन नहीं है. तो ये ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत लो है. एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है, लो एजुकेशन, नो लोन फॉर एजुकेशन, लो मदर एजुकेशन, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत कम है या रिसर्च सेंटर भी बहुत कम है. Another one is higher levels of inequality and absolute poverty. थ्रू वर्ल्ड लेवल पे भी आप इनक्वालिटी की कंडीशन बता सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कि इनकम इनक्वालिटी जो है ये सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि डेवलप्ड वर्ल्ड की भी ये प्रॉब्लम है. द फर्स्ट ग्रुप हैज 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड रिसीव्ड 45% ऑफ द वर्ल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी इनकम. अब देखें कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड की जो है इनकम इनक्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है
कि 13% पॉपुलेशन का ग्रुप है वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उनका इनकम में जो है वो 45% कंट्रीब्यूशन है रियल इनकम में, ठीक है, कंट्रीज का। दिस ग्रुप इंडिकेट्स, ये जो ना आप कह सकते हैं कि इंटर ग्रुप जो है वो इनकम इनक्वालिटी की बात की जा रही है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। The second group has 42% of world population and receives only 9% of the world purchasing power parity income. This group includes India, Indonesia, rural China, and so on. Oxfam International released a report to the World Economic Forum that the richest 1% own 48% of the global wealth. आप ये देख सकते हैं कि कितनी इनकम इनक्वालिटी की पिक्चर है। अगर आप विद इन द कंट्री बात करें तो पाकिस्तान की बात करें तो वो एक पॉपुलर स्लोगन था 1980s में 70s में जो है वो पॉपुलर हुआ था कि ओनली 22 फैमिलीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइज 77% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. So it is a great picture of income inequality in the developing countries as well as in the developed countries. Absolute poverty इसके अलावा sub-Saharan African is the most poorest region in the world. Around 45% of the population are living below the poverty line. In South Asia, South Asia is the second poorest region in the world, and there are around 28-27% people are living below the poverty line. In Pakistan, around 23-24% are people are living below the poverty line. So this is the true picture of absolute poverty. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जैसे मैंने बताया था कि 2.03 पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में, भी कोई एक थोड़ा पॉइंट डिफरेंस आ गया हो। अगर आप इसको डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे 1% है, कहीं उससे भी कम है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा तो फिर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं करेगी जल्दी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एंड पर कैपिटा इनकम विल ओनली इंक्रीज व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है, सो योर पर कैपिटा इनकम विल रिमेन सेम। और इसी तरह फैमिली साइज को आप डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट में कि फैमिली साइज डेवलपिंग कंट्री का क्या है, डेवलप कंट्री का क्या है। डिपेंडेंसी रेशियो को आप डिस्कस कर सकते हैं, तो रूट बर्थ रेट को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर सोशल फ्लेक्शनलाइजेशन। ग्रुपिंग बनी हुई है, एथनिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। और ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, ठीक है। आप आपने एजुकेशन अटेन करनी है, उसके लिए ग्रुपिंग है। आप जो है वो अगर मिडिल इनकम है, आपका बच्चा जो है वो एचईसन में नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग है। एलीट क्लास है, वहाँ पे वही जाएंगे जो एलीट क्लास है। इस तरह ये जो डिवीजन है इस तरीके से on the basis of linguistic, on the basis of income, on the basis of you can say that religious, this is named as social fractionalization. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो बहुत ज़्यादा है। लार्जर रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ये आपके सामने एक पिक्चर भी सेट की गई है, लेकिन ये 2015-2014 के लिए है। आपने इसको अपडेट करना है, आपने करंट फिगर्स के साथ यूज़ करना है। ये वर्क आपने खुद करना है। रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की। आप यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन लिख सकते हैं कि कितनी पाकिस्तान में रूरल पॉपुलेशन है इस टाइम। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत कम है, वो रेट भी आपको इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से मिल जाएगा। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ऐसे ही है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रो बेस्ड कंट्रीज हैं, और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत कम है। लो लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो बेस्ड करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे। तो उनसे क्या अर्निंग होनी है। आप उसके मुकाबला में डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर एडवांस कंट्रीज डेवलप्ड through their industrial sector by exporting manufactured products.
We can also observe the newly industrialized countries, South Africa, Mexico, Brazil, China, India, Indonesia, Malaysia, फिलीपाइन, थाईलैंड, टर्की। ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का ग्रुप है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं जिनके नाम लिए हैं, इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है। मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज एक्सपोर्ट करके ही जो है ये इमर्जिंग बने हैं या फर्दर डेवलप हुए हैं। GDP share of industry sector was 20.30% in 2015 in Pakistan, and GDP share of industry sector was 44% in 2015 in China. ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का जीडीपी में कितना शेयर है हमने कंपैरिजन किया, पाकिस्तान के लिए कितना है और चाइना के लिए कितना है। इस फिगर को आप जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। एडवर्स जियोग्राफी जिस तरह मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो है ये नेबर कंट्रीज के साथ जैसे ट्रेड नहीं हो रही, वैसे जियोग्राफी सही है, लेकिन जिस तरह इंडिया के साथ हमारी बहुत ज़्यादा लंबी सरहद है और वहाँ पे जो है वो हमारी उनके साथ ट्रेड नहीं हो रही, तो ये एडवर्स जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है ना। ऑब्वियसली जो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ट्रेड होनी है वो नेबर कंट्रीज के साथ ही होनी है, और अगर नेबर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो ये एडवर्स जियोग्राफी को ही जाहिर करता है। अंडर डेवलप्ड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है इन द डेवलपिंग कंट्रीज। लो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, एनर्जी सप्लाई, वाटर सप्लाई फैसिलिटी नहीं है। इसी तरह इम्परफेक्ट मार्केट जिसमें जो है वो फ्रीली बायर्स एंड सेलर से जो है प्राइसेस डिटरमिन ना होती हों, बैरियर्स हों, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से मुराद है कि द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर नीड टू मेक एफिशिएंट डिसीजन रिजल्ट इन अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगरिंग कॉलोनियल इम्पैक्ट्स एंड अनइक्वल इंटरनेशनल रिलेशन, मैं इसे ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिस तरह ये डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी है ये पास्ट में किसी ना किसी डेवलप कंट्रीज का कॉलोनियल पास्ट रहे हैं। जैसे बर्सगीर पर जो है वो इंडिया बरतानिया की हुकूमत थी, अब वो कंट्रीज जो हैं वो इधर से चले गए हैं, और जाते जाते पहले जो है वो अपनी जो आप कह लें कि ब्यूरोक्रेसी की सीट्स थी या जो पॉलिटिकल सीट्स थी उनमें सब पे अपने बंदे बिठा कर गए थे। आहिस्ता आहिस्ता अपने गोरों को रिप्लेस कर लिया, लेकिन स्टिल जिन लोगों के पास जिस क्लास के पास ये छोड़ कर गए हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं अपने कंट्रीज में, उनके साथ वो रिलेशन बना कर रखते हैं ताकि वो उनके ज़रिए डेवलपिंग कंट्रीज पर हुकूमत कर सकें। इसी तरह वो और ये जो कंट्रीज हैं ये अपने कॉलोनियल पास्ट को लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ताकि ताकि वो उन पे डिपेंडेंट रहें। सो दैट इज़ अनदर यू कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था, जो है आप उसको मज़ीद देख लीजिएगा पॉइंट्स। एक्सटर्नल डिपेंडेंस ऑब्वियसली जो है ट्रेड के ज़रिए हम डिपेंडेंट है डेवलप कंट्रीज़ पे, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए किसी डेवलप कंट्री पे डिपेंड है। हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम खुद तो प्रोड्यूस नहीं करते, हम डेवलप कंट्री से जो है वो बाई करते हैं। तो इसी तरीके से फिर वो आपको टाई रेट ऑफर करते हैं, मतलब एड भी देते हैं और साथ कहते हैं कि ट्रेड हमारे साथ करो। रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपने जी गाड़ियाँ खुद प्रोड्यूस नहीं करनी, हमसे ही परचेज करनी है, ठीक है हम आपको एड देंगे। जैसे जापान ने पाकिस्तान को एड दी 70s 80s में 60s में, और यही एग्रीमेंट्स हुए कि ये जो आपने गाड़ियाँ किसी और कंट्री से परचेज नहीं करनी, सिर्फ जो है वो जापान से ही हमारा ट्रेड करनी है या जो भी सेटलमेंट हुई, तो ये इसको टाई रेट का कंसेप्ट बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल डिपेंडेंस दैट इज अ हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये डेवलपिंग कंट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो एक्सटर्नल डिपेंडेंस में फंसे हुए हैं। लो हाउ लो इनकम कंट्रीज टुडे डिफर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज इन देयर अर्लियर स्टेजेस। किस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से डिफर हैं, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंडोमेंट, इस बेस पे डिफरेंस है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स भी कम है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स भी कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज।
रिलेटिवली लेवल्स ऑफ, यहाँ पे बेसिकली ये जो पहले वाली फिगर यूज किया हम उनमें भी कंपैरिजन कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का और डेवलप कंट्रीज का। रिलेटिव लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी, आप पर कैपिटा इनकम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की देख लें और उधर डेवलप कंट्रीज की देख लें। क्लाइमेट डिफरेंसेस, मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये जो है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, मोस्टली जो है वो गर्म इलाकों में है। और आप डेवलप्ड कंट्रीज का जो है वो आप टेम्परेचर चेक कर लें कि उनमें जो है डिफरेंस। हाउएवर ये इतना मैटर नहीं करता, अगर आप अपने रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज करें तो इतना मैटर नहीं करता। पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज को कंपेयर कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के और डेवलप कंट्रीज को, किए भी गए यहाँ पे आपके सामने। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, किस तरीके से जो है वो फैक्टर मोबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर है टुवर्ड्स लेबर स्केर्स कंट्रीज टू कंपेयर विद टूडे। द ग्रोथ स्टिमुलस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहा गया है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज की एग्जांपल है जिन्होंने अपने जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए हैं। आप चाइना को देख लें, आप कोरिया को देख लें, आप ताइवान को देख लें, मलेशिया इंडोनेशिया को देख लें कि उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया, अपने एक्सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया। द बेसिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलप्ड कंट्रीज को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिक साइंटिफिक रिसर्च and technological development has played a crucial role in the modern economic growth of developed countries. Their high rates of growth have been sustained by new technological innovation, advancement in the stock of scientific knowledge, research and development. इस बेस पे आप डेवलप कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये बहुत मैटर करता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आपके क्या क्या एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, और ये ही इंस्टीट्यूशन डेवलप कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेवलपिंग कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यही एक मेजर रीज़न है जो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग स्टेट में रखती है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा बस। यहाँ तक ये तेज़ी से हमने इसलिए बेसिकली पढ़ा है कि ये सारे सेम है, आपस में इंटरलिंक है, एक ही चीज़ है। इन सब में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही डिस्कस कर रहे थे या फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे थे और उसको डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे थे, डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर रहे थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, CRGR। अभी इसके बाद मैं आपके साथ दोबारा लिंक शेयर करता हूँ और फिर जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं।